Good morning. Today we will talk about the Indian monsoon or the mechanism of monsoon. Already done that the word monsoon, it has been derived from the Arabic word मौसम. हम लोग हिंदी में वर्ड यूज करते हैं मौसम, तो उसी वर्ड से ये जो मॉनसून वर्ड है वो डिराइव हुआ है. Right, so earlier what used to be there कि जो sailors होते थे, when they used to sail through the sea or travel through the sea, what they used to do कि वो इन विंड सिस्टम को, इस जो मॉनसून विंड सिस्टम है उसको फॉलो करते थे, बिकॉज दीज विंड सिस्टम आई मीन दे यूज्ड टू रिवर्स इन द डिफरेंट सीजन. सो ये उसी उसके पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो विंड्स हैं वो एक सीजन में एक डायरेक्शन में है और नेक्स्ट सीजन में दे आर रिवर्स. सो उस पैटर्न को फॉलो करके दे यूज्ड टू सेल थ्रू द सीज. सो जो अरब जब इंडिया में आया था तो उन्होंने जब इसको ऑब्जर्व किया, देन they had given this name monsoon और वहां से derived होके the word monsoon is there. Now the monsoon, this is experienced in the tropical area roughly between 20 degree north and 20 degree south. Now you will observe now कि whatever weather phenomena और monsoon weather phenomena is there, वो सारा का सारा दो tropics के बीच में ही है. Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn. Right? So अगर हम इसे थोड़ा विजुलाइज करें इंडिया के मैप के साथ, सो विल कम टू नो कि ऑलमोस्ट फ्रॉम हाफ ऑफ द मध्य प्रदेश टिल तमिलनाडु, राइट, टिल तमिलनाडु दिस monsoon takes place or this monsoon mechanism takes place. और ये जो मैकेनिज्म है इसको अगर हमने अच्छे से पढ़ना तो हमें कुछ फैक्ट्स जो हैं वो पढ़ने होंगे. सबसे बड़े जो मेन फैक्ट है which already we had discussed, that is a pressure system. If the temperature is low, then the high pressure will be created, and if the temperature is high, then the low pressure will be created. Right, this already we have done. So जितना भी monsoon mechanism है, that is revolving around this fact only, right? And the other fact around which this mechanism revolves is कि the winds blow from high pressure to low pressure. अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बात करें तो सारा मैकेनिज्म जो है वो इसी फैक्ट के आसपास है कि if the temperature is high, the low pressure is created. If the temperature is low, high pressure is created, and the winds blow from high pressure to low pressure. Right? Now the first fact says the differential heating and cooling of land and water. We know this fact कि जो land है वो heat up भी जल्दी होता है, cool up भी जल्दी होता है. जो water bodies हैं, seas हैं, वो heat up भी लेट होती हैं और cool up भी लेट होती हैं. Right? So because of this, it creates low pressure on the landmass of India, while the seas around experience comparatively high pressure. So high pressure से ही low pressure की तरफ हवाएं चलती हैं, और क्योंकि सी के आसपास हाई प्रेशर होता है तो जब वो हवाएं लैंड की तरफ चलती हैं तो वो सी से मॉइस्चर ले लेती हैं. They absorb the moisture from the sea and they travel to land. और उससे क्या होता है, फिर वो लैंड एरिया में जाके रेन शेड करती है. राइट? Then is a shift of position of intertropical convergence zone. This intertropical convergence zone, it is actually a broader zone of low pressure in the equatorial latitudes, and this work from north to south with the apparent movement of the sun. जिस ढंग से जैसे जैसे सन की मूवमेंट होती है from southern hemisphere to northern hemisphere और northern to southern, उसी हिसाब से ये जो tropical zone है ये भी मूव करता है. When the sun is there in the southern hemisphere, so ये जो zone है that shifts to the southern hemisphere. When the sun moves to the other one, so ये northern hemisphere में आ जाती है. Right? Then is Tibetan Plateau. It's the presence of high pressure area east of Madagascar, approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean, and the intensity and position of this high pressure area affects the Indian monsoon. So again यहाँ पर हम लोग observe कर रहे हैं कि जितना भी phenomena it is taking place between the two tropics or being happening in the tropics. So हमारा जो southern part है southern India below
द मध्य प्रदेश, वहां पर ये सारे जो चेंजेस हैं या सारा जो फिनोमेना है दैट टेक्स प्लेस. Then the Tibetan plateau, it gets intensely heated during summer. And जब समर में इंटेंसली हीटेड होगा तो बट ऑब्वियस लो प्रेशर एरिया और लो प्रेशर इज क्रिएटेड ओवर द प्लेटेड. सो जहां भी लो प्रेशर एरिया है वहां पर हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से मूव करेंगी. राइट. अब इसमें इफ आई टेल यू वन थिंग कि अब रेनफॉल जो है डिपेंड्स कि हवाएं कहां से चल रही है. राइट. अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो व्हेन द winds are blowing from the sea, high pressure area of sea to the low pressure of land, so they carry the moisture with them and they shed their rainfall in the land area. If the winds are blowing from the high pressure area of mountainous region, अगर हिमालय से चल रही हैं हवाएं, हाई प्रेशर एरिया है, वहां से जब लैंड की तरफ आएंगी तो वहां पर कोई वाटर बॉडी तो है ही नहीं. So those winds would be dry. They will not cause rainfall. Right? ये कॉमन चीज हमने अपने माइंड में रखनी है कि if the winds are blowing from the sea area, high pressure area of sea, then they carry, or the water bodies, then they carry the moisture with them and those winds shed the rain. और हमारी कंट्री में बेनिफिट ये है कि कोस्टल एरियाज होने के कारण ये जो winds which starts from the Bay of Bengal or the Arabian Sea carrying the moisture, ये हमारी पूरी कंट्री को एक आप कह सकते हैं हेल्दी और सफिशिएंट वाटरफॉल देती है. राइट. There is a movement of westerly jet streams to the north of Himalayas and the presence of tropical easterly jet streams over the Indian peninsula during the summers. These streams, these also, I mean, create or helps in bringing the rainfall to the country. अब इसमें कुछ और छोटे छोटे concepts हैं कि we have noticed that changes in the pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoons. See, जो भी oceanic areas है वहां पर जो pressure movement या pressure जो change होता है that affects, these pressure conditions affects the monsoon in the surrounding areas. Right. So normally when the tropical eastern South Pacific Ocean experience high pressure, the tropical Indian Ocean experience the low pressure area. Right. So इस सारा का सारा ये जो system है, again as I said, keep working on the pressure. If high pressure is there, then the winds will start moving to the low pressure. राइट. सो इस कंसेप्ट पे अगर हम करते हैं तो इट इज देयर दैट अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशंस एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज लो प्रेशर इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन. सो ये जो प्रेजेंस ऑफ प्रेशर कंडीशंस हैं और जब ये चेंज होती हैं कि समर्स में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, विंटर्स में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ये जो पीरियोडिक चेंज है in the pressure conditions, it is known as the southern oscillation और इसे हम SO भी कहते हैं. Right? So ये when the pressure conditions changes according to the season, that change in the conditions is known as the southern oscillation. Right? और इन्हीं के ऊपर ये सारा का सारा मैकेनिज्म जो है दैट इज बेस्ड. राइट. एज फार एज द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल इज कंसर्न, अब ये हमारा एक हमने बेसिक फैक्ट्स के ऊपर हमने काम किया कि ये जो फैक्ट्स है इन्हीं के ऊपर हमारा सारा मैकेनिज्म जो है वो डिपेंड करता है. Right, we have just missed one term here, El Nino. I'll just read it out for you people. It is a name given to the periodic development of warm ocean currents along the coast of Peru as a temporary replacement of the cold Peruvian current. So इसमें क्या है कि जो warm currents जो है उनकी जगह जो cold currents कुछ टाइम के लिए replace कर देती हैं again because of these pressure conditions. So that is known as the El Nino, which is a Spanish word meaning the child. So El Nino से क्या अफेक्ट पड़ता है? It leads to an increase in sea surface temperature and weakening of the trade winds in the region.
राइट कैसे ये सी सरफेस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, बताओ जब कोल्ड करंट की जगह वार्म करंट उसको रिप्लेस कर देती है तो वार्म करंट के कारण जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, वार्म हो जाता है और लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, राइट. सो अगेन द प्रेशर कंडीशंस, राइट. So as far as the monsoon is concerned, अभी तक पूरा मैकेनिज्म पढ़ लिया. अब what the general features are there? General features are कि ये जो monsoons है, from many years we are observing कि normally जुलाई में start होते हैं and it moves till September, right? So otherwise एक जो ideal time period है इसका, it is from early June to mid September. अब इस अर्ली जून में हम कौन से एरियाज कवर कर रहे हैं? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, हम पूरी कंट्री का कवर कर रहे हैं, राइट. अब पंजाब में रेनफॉल जो है वो लेट आता है, राइट, दैट रीचेस हियर इन जुलाई. लेकिन जो मॉनसून है दैट स्टार्ट्स इन अर्ली जून इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट. सदर्न पार्ट से ऑलरेडी ये जून में स्टार्ट हो जाता है, राइट. सो अराउंड दिस टाइम द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली, राइट. हम लोगों ने कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब मानसून आते हैं या बारिश आती है तो एक दिन बारिश हो जाती है, देन फ्यू अदर डेज नेक्स्ट डेज आर ड्राई वन, फिर एक दिन बारिश हो जाएगी, फिर ड्राई हो जाएंगे, राइट. सो ये जैसे एक आध बारिश हुई एंड देन द डेज आर ड्राई, तो इसे हम प्री मानसून शावर्स कहते हैं, राइट. एंड व्हाट हैपेंस कि इन सब एंटायर पीरियड में एक दो बार ऐसा होता है कि इट रेन्स हेविली एंड इट रेन्स फॉर नंबर ऑफ डेज, कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक बारिश होती है, राइट. ये आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया हुआ है. सो दिस कंडीशन इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ मॉनसून. और आप बर्स्ट ऑफ मॉनसून को बड़े इजीली प्री मॉनसून शावर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट. हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा इस समय दिक्कत ये है कि जो मॉनसून हैं दीज आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, right. One year it will rain heavily, it will rain sufficiently. In the other year it may not rain, right. In some areas like Meghalaya, Assam, those areas of the northeast area, they experience heavy rainfall, whereas if you move to Rajasthan it is a scanty rainfall, right. Duration जो है, sometime it is for longer duration, sometime it is for a shorter duration, sometimes it rains heavily, sometimes it rains less, and इनका जो arrival और departure भी कभी जल्दी आ जाती है, कभी लेट आ जाती है. So ये बहुत थोड़ा unpredictable है rainfall, right. और ये जो मॉनसून है इट अराइज एट द सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून. यू कैन अंडरलाइन ऑलवेज कि जब जो हमारा सदर्न पार्ट है, सदर्न टिप है, वहां से ये जो मॉनसून है ये स्टार्ट होते हैं जून में, राइट. एंड इट प्रोसीड्स इनटू टू पार्ट्स, right. It proceeds into the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch, right. So I will just explain this through a diagram here. Fine. This is your southern tip of India, right. This is the southern tip of India. The monsoons, this start from the southern tip, right. It gets divided in two branches. One is the Bay of Bengal. It is the Bay of Bengal branch, and this is the Arabian Sea branch. राइट. इंडियन ओशन से स्टार्ट हुआ, डिवाइड हो गया ये मॉनसून जो है, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गए हैं, बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी, राइट. नाउ व्हाट हैपेंस कि यहां से ये बे ऑफ बंगाल ये दोनों पैरेलल चलते हैं, बोथ ऑफ द ब्रांचेस मूव पैरेलल, राइट.
सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहाँ से अरेबियन सी से स्टार्ट होते हैं। अब जब ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं तो दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, राइट, ये रास्ते से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। नाउ इट रीचेस हियर, अब ये यहाँ से आते हैं, यहाँ से अरेबियन ब्रांच जो है सौराष्ट्र से सेंट्रल इंडिया में एंटर करती है, और बे ऑफ बंगाल जो है यहाँ असम से सेंट्रल इंडिया में एंटर करती है। जब ये ब्रांच असम पहुंचती है तो व्हाट हैपेंस कि वहां पर माउंटेन्स बहुत हैं, राइट। सो उन माउंटेन्स से टकराती हैं और ये लेफ्ट हो जाती, वेस्ट हो जाती है, वेस्ट में होके ये सेंट्रल इंडिया में आ जाती है, राइट। यहां से अरेबियन सी ब्रांच आई, सौराष्ट्र से एंटर कर गई सेंट्रल इंडिया में, राइट। अभी सौराष्ट्र से जब एंटर कर जाती है तो राजस्थान का कुछ पार्ट जो है वो रह जाता है, और वो जो एरिया है दैट इज द ड्राई एरिया, राइट, वहां पर वो रह जाता है। तो ये जब आती है सेंट्रल इंडिया में, देन दे मर्ज, ये यहाँ पर मर्ज हो जाती हैं और they cause heavy rainfall in central India. They cause heavy rainfall in the central India. टिल सितंबर ये यहाँ पर रहती है, टिल सितंबर बारिश होती है, सारे एरिया कवर होते हैं। वेस्ट में पंजाब है और पंजाब के बाद फिर हिमाचल आ जाता है, ये सारा एरिया कवर होता है। ये सारे गैंजेटिक प्लेन्स है, गैंजेटिक प्लेन्स में यूपी है, बिहार है, ऑल दीज एरियाज आर देयर जहां पर ये जो ये दोनों ब्रांचेस हैं दे शेड द रेन, राइट। देन आफ्टर शेडिंग द रेन ये सितंबर तक अब ये ड्राई हो जाती है, राइट। वंस दे ड्राई दे स्टार्ट रिट्रीटिंग, ये वापस आना शुरू हो जाती है, राइट। अब ये जब वापस आना शुरू होती हैं तो ये क्या करती हैं, यहां से मुंबई या महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, राइट। अभी जो वापस आ रही है ड्राई हो चुकी है, यहाँ से वापस आती है मॉइस्चर लेना शुरू कर देती है, दे अगेन स्टार्ट एब्सॉर्बिंग द मॉइस्चर, राइट। अब मॉइस्चर यहां से लेके और व्हाट हैपेंस कि अब ये वापसी में रिट्रीटिंग के टाइम पे ये बारिश करती है, और इन एरियाज में यहाँ भी ऐसा हुआ, ये वापस आती है और वापस में मॉइस्चर लेती है और मॉइस्चर लेके लिए यहाँ पर बारिश करने लग जाती है। एंड दैट्स द रीजन कि यहाँ पर तमिलनाडु तक आते आते इनको नवंबर हो जाता है, ऑलमोस्ट नवंबर और कैसे मिड ऑफ दिसंबर तक पहुंचती है, और ये तमिलनाडु में उस टाइम बारिश होती है। यहाँ से सारा मॉइस्चर पिक किया और तमिलनाडु तक आते आते ऑलमोस्ट मिड दिसंबर, और दैट्स द रीजन कि तमिलनाडु में जो रेनफॉल है दैट इज देयर इन विंटर्स, राइट। और दिसंबर एंड तक आते आते ये जो मॉनसून्स हैं ये पूरी तरह से विड्रॉ हो जाते हैं कंट्री में से, राइट। सो टिल दिसंबर ये पूरी तरह से विड्रॉ हो जाते हैं। इसे हम लोग रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं, या इसे हम लोग विड्रॉल ऑफ मॉनसून कहते हैं। जब ये मॉनसून स्टार्ट होता है फ्रॉम सर्टेन टाइम, दैट इज द एडवांसिंग मॉनसून, व्हेन इट कम्स बैक और रिट्रीट्स बैक, सो इट इज द रिवर्सल ऑफ द मॉनसून। So this is exactly the concept of your monsoon. तो राजस्थान में कौन सी स्टेट आ रही है? Gujarat. So this is the phenomena, the mechanism, and the way the monsoons takes place in our country. So as I said, the island receives the very first monsoon showers progressively from south to north from the last week of April to the first week of May, and the withdrawal takes place progressively from north to south from the last week of December to the first week of January. एडवांसमेंट होती है साउथ से नॉर्थ, अप्रैल टू मई स्टार्ट हो जाता है, और विड्रॉल जो होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। So I hope this concept is very much clear to you people.